Good morning, everyone. What had we done in the previous class? Sir, balance sheet. Yes, we had seen first we had discussed some terms related with share capital like calls in arrears, calls in advance, called up capital, paid up capital, etc. Then we had discussed the format of balance sheet. Okay. Any doubt up to there? No? Okay. Now we proceed further. No, sir. Okay. Issue of shares. Now, when a company issues shares, it can mainly issue them in two ways. One is private placement. As per section 42, shares, private placement means shares allotted to selective group of investors privately without issuing to the public. तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट जनरली कौन से टाइप की कंपनी करेगी? प्राइवेट कंपनी. यस, वेरी गुड. क्योंकि वो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करते. Even a public company can do private placement, but generally it is done mainly by private companies. Then comes public issue. When shares are offered for subscription to public, general public, offering new shares to public is called initial public offer, IPO. सुना है IPO term? No, sir. ओके. ये न्यूज में कई बार यूज होती है. कोई बिजनेस चैनल देखोगे बहुत आपको सुनने को मिलेगी IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. जब कोई कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, न्यू शेयर्स इशू करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO. क्लियर? यस सर. Now shares can be issued at par or at a premium. अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और कंपनी उसे 100 रुपीज में इशू कर रही है तो हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार. क्या कहते हैं? इशू ऑफ शेयर्स एट पार. यस. लेकिन अगर वो 100 रुपीज का शेयर कंपनी इशू कर रही है लेट अस से 125 रुपीज में, तो 25 रुपीज एक्स्ट्रा जो कंपनी ले रही है वो किस बात के ले रही है? क्या हो सकता है? पार्टनरशिप में ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? नया पार्टनर आता है तो उससे कुछ एक्स्ट्रा गुडविल के. यस यस सान्या. Sir, I was saying goodwill. यस, वेरी गुड. फॉर गुडविल. जैसे पार्टनरशिप में था ना, न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल का अमाउंट भी लेकर आता है कैपिटल के अलावा. ठीक है. सिमिलरली व्हेन अ कंपनी इज इशूइंग मोर शेयर्स, many a times it issues them at more than face value, so the extra amount that the company takes, that is called premium. So such issue is called issue of shares at a premium, means more than face value. तो वो प्रीमियम किस बात का ले रही है कंपनी? गुडविल का. ठीक है. सेक्शन 52(1) prescribes the amount of premium should be credited to securities premium account. But schedule 3 जो अभी हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, it has given the head securities premium reserve in balance sheet format. ठीक है. तो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है. एक जगह कह रहे हैं कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट उसको नाम दे रहे हैं, लेकिन जब फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का वहां पर उसका नाम उन्होंने दे दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. सो इट इज बेटर टू यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है, फॉर प्रीमियम. क्लियर? Yes, sir. यस सर. Premium is shown under the heading
रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि देखो इसके नाम में ही आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो बैलेंस शीट में इसे दिखाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर। ठीक है, यस सर। अब ये आप लिखो साथ साथ, सेक्शन 52 विद इन ब्रैकेट्स 2 restricts the use of securities premium amount for following purposes only। कंपनी को जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला उसे कंपनी अपनी मर्जी से किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकती। It has to be used for, it can be used for some specific purposes only। For which purposes, that we will discuss now। ये लिख लिया आपने फर्स्ट लाइन, for following purposes only। यस सर। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, issuing fully paid bonus shares to members। Do you know what bonus shares are? नो सर। Okay, let me tell you। Sometimes when a company has accumulated huge amount in its reserves, then it can decide to utilize that amount to issue more shares to the existing shareholders without taking any price for them। Such shares are called bonus shares। ठीक है, suppose the company decides कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जिसके पास 10 शेयर पहले से हैं उसे एक और शेयर फ्री में मिल जाएगा, जिसके पास 20 शेयर पहले से हैं उसे 2 शेयर फ्री में मिल जाएंगे और। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाएगी। कंपनी उसका पैसा कहां से एडजस्ट करेगी? रिजर्व में से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। उस केस में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? अगर कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज कर लेती है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, सिक्योरिटीज डेबिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ डेबिट होगा, क्योंकि उसका रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें से पैसा लेना है तो उसे डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यस क्लियर है ये पॉइंट? सर। तो बोनस शेयर नहीं होना चाहिए? है तो वो भी शेयर ही ना, कंपनी ने फ्री में दे दी है, वो कंपनी को पता है बोनस शेयर, कंपनी ब्रैकेट में लिख सकती है उसमें बोनस शेयर्स इशूड, लेकिन नरेशन में या ब्रैकेट में आ जाएगा, बट मेन जाएगा तो शेयर कैपिटल में ही, क्योंकि वो भी अब शेयर कैपिटल का पार्ट है जो नए शेयर इशू हो गए। यस सर। सेकेंड पॉइंट, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। व्हाट आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? डेली एक्सपेंस, डे टू डे। नॉट एग्जैक्टली। यस वंशिता। So those expenses that arise when the company actually begins. Before it begins its business. You are right. When the company is formed, all initial expenses, registration expenses, share issue expenses, underwriting commission, till the company starts doing business, तो उससे पहले पहले के जितने खर्चे होते हैं they are called preliminary expenses। तो preliminary expenses को write off करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड। उस केस में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? यस वंशिता। सिक्योरिटीज। So security reserve premium account debit to preliminary expenses account. Yes, very good. Securities premium reserve account debit to preliminary expenses account। लिख लिया? ये क्लियर है निखिल? यस सर। थर्ड पॉइंट, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस
oblique commission paid, oblique discount allowed on any issue of securities or debentures of the company. शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह इशू करने पे जो भी खर्चा आया उसको राइट ऑफ करने के लिए भी यूज किया जा सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट. क्लियर? Yes, sir. लिख लो. Yes, sir. Fourth point is providing for premium payable on redemption of any redeemable preference shares or debentures of the company. हमने डिस्कस किया था प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल इरिडीमेबल भी हो सकते हैं ऐसे ही थियोरेटिकली, और डिबेंचर्स भी रिडीमेबल इरिडीमेबल हो सकते हैं, मींस विच आर टू बी रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, और जनरली रिडीमेबल होते हैं. कई बार कंपनी उन्हें इशू करती है इन टर्म्स के साथ कि रिडम्पशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. तो जो कंपनी ने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है रिडम्पशन पे उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. क्या कहते हैं? Premium on redemption. तो दो तरह का प्रीमियम हो गया, एक इशू के टाइम पे प्रीमियम जो कंपनी को मिलता है शेयर होल्डर से या डिबेंचर होल्डर से, और एक प्रीमियम हो सकता है जो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर की रिडेम्पशन पे देना है, उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. तो वो कंपनी के लिए एक तरह से लॉस है कि भाई जितना पैसा लिया है उससे ज्यादा कंपनी ने रीपे करना है ना. तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज किया जा सकता है. क्लियर? Yes, sir. लिख लो. Yes, sir. Fifth point is purchasing its own shares. Hmm. बायबैक भी कहते हैं इसे, और इसमें एक चीज और ऐड करते हैं. आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर कंपनी को कभी लगे कि उनकी शेयर कैपिटल बहुत ज्यादा है या बिजनेस कम रह गया और परमानेंटली अब लॉन्ग टर्म तक कम रहने वाला है, या किसी भी और वजह से कंपनी डिसाइड्स कि उसे अपनी शेयर कैपिटल कम करनी है, तो कंपनी अपने ही शेयर्स को रिडीम कर सकती है, वापस खरीद सकती है शेयर होल्डर्स से. ठीक है, लेकिन इसके लिए कंपनी को पहले रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है. मींस कम से कम कितने परसेंट वोटिंग? 75%. वेरी गुड, 75% वोटिंग. ठीक है, तभी कंपनी बायबैक कर सकती है. लेकिन अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो उसके लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट यूज हो सकता है. ठीक है, Yes, sir. so these are the only 5 purposes for which securities premium reserve amount can be used. It cannot be used for any other purpose. Issue of shares in lump sum. अब आते हैं हम अकाउंटिंग एंट्रीज पे इशू ऑफ शेयर्स की. अगर कंपनी, जनरली कंपनीज लंप सम में ही इशू करती हैं शेयर्स को, मतलब पूरा अमाउंट एक ही बार एप्लीकेशन के साथ ही मंगा लेती है. ठीक है, उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? लिखो इशू ऑफ शेयर्स इन लंप सम, हेडिंग दो. बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? So bank debit. बैंक डेबिट होगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं. यस यस सक्षम. Sir, bank to share application account. वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. लिखते जाओ साथ साथ.
रिटर्न। Yes, sir. उसके बाद जैसे ही कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है एप्लीकेशंस आने के बाद, तो अलॉटमेंट के टाइम पे फिर दूसरी एंट्री पास होती है, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो अमाउंट आया था अब उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना है। सो सेकेंड एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से? जितना अमाउंट पिछली एंट्री में मिला था शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू ब्रैकेट में लिखो। सपोज 100 रुपए का शेयर है और 125 पे कंपनी ने इशू किया है, तो कैपिटल में 100 रुपए ही जाएंगे फेस वैल्यू, 25 रुपए किस में जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। उसके आगे लिखो स्टार डाल के टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखो प्रीमियम। स्टार क्यों डाला है? स्टार इसलिए डाला है कि अगर प्रीमियम पे इशू है तो ये अकाउंट आएगा एंट्री में, नहीं तो नहीं आएगा अगर प्रीमियम पे नहीं है तो। एंड अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई थी, कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है, तो उनके पैसे वापस भी होंगे, उसके लिए टू बैंक अकाउंट स्टार डाल के रिफंड। क्लियर? Yes, sir. लिख लिया? ये एंट्री लिख ली सेकंड वाली भी? Yes, sir. ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो और अंडरलाइन बॉक्स में डाल लो इसे, जो अब कहने जा रहा हूं मैं। शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड और क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। किसी भी एंट्री में कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, चाहे वो डेबिट हो रहा चाहे वो क्रेडिट हो रहा हो, तो हमेशा फेस वैल्यू पे होगा। रिटर्न? Yes, sir. अब अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रही है अमाउंट, एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट मंगवाया, फिर अलॉटमेंट पे के बाद कुछ अमाउंट मंगवाया, फिर और एक दो इंस्टॉलमेंट्स में बाकी का अमाउंट मंगवाया, तब एंट्रीज कैसे होंगी वो अब हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग लिखो शेयर्स इशूड फॉर कैश पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में किसी सब्जेक्ट की क्लास है आपकी? Yes, sir. विच वन? Sir, maths. ओके, 11:15 पे। Yes, sir. Okay. As per section 39 within brackets 2, application money should be at least 5% of face value of shares. अगर इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी अमाउंट मंगवा रही है तो एप्लीकेशन पे कम से कम 5% अमाउंट मंगवाना है। क्लियर? Yes, sir. और सच अदर परसेंटेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। अब ये लिखा हुआ है एक्ट में, लेकिन सेबी क्या कहता है? सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 25%, नॉट 5%। तो इसलिए एप्लीकेबल क्या हो गया? 25%। कम से कम फेस वैल्यू का 25% तो मंगवाना ही होगा एप्लीकेशन पे। ठीक है? इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम and it is not specified in which installment premium amount is included. क्वेश्चन में आपको सपोज दे दिया कि प्रीमियम पे इशूड है शेयर्स, लेकिन ये नहीं बताया प्रीमियम वाला अमाउंट एप्लीकेशन के साथ आना है। अगर तो बता दिया क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन के साथ आना है या अलॉटमेंट के साथ आना है या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, तो उसके हिसाब से हम एंट्री कर देंगे प्रीमियम की। अगर उन्होंने दे दिया कि कुछ कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब पे आना है, उसके हिसाब से एंट्री कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है प्रीमियम इतना है, पर कौन सी इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम आना है ये नहीं दिया हुआ, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट उसे अलॉटमेंट के साथ लेना है। क्लियर? Yes, sir. लिख लो ये
if not specified in which installment premium amount is included, it is assumed to be included in allotment amount. Written? सर वो अलॉटमेंट वाली लाइन. If it is not specified in which installment premium account is included, it is assumed to be included in allotment amount. ठीक है? यस सर. हमने एक इलस्ट्रेशन की थी पहले, उसका आपने क्वेश्चन लिख लिया ना? सर कौन? ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाए थे जिसमें ये वाली, यस ये क्वेश्चन लिख लिया था इसका नोटबुक में? सर. सर क्वेश्चन है सर नोट्स टू अकाउंट्स में. सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है, यस सर. क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ? नो सर. तो फिर रिवाइज करते हुए आपको समझ में नहीं आएगा. उस जहां पे उसका सॉल्यूशन लिखा है उसके आसपास जहां भी जगह है ये क्वेश्चन लिख लो पहले उसका, ताकि कभी भी आप रिवाइज करोगे आपको समझ में तो आएगा. क्या अभी एक बार को तो समझ में आ गया करते हुए, कुछ दिन बाद भूल जाओगे कि क्या क्वेश्चन था. तो ये क्वेश्चन लिख लो पहले. यस सर. ठीक है? जहां पे भी वो सॉल्यूशन किया था, 4 केस किए थे ना हमने, केस 1 2 3 4, तो उस सॉल्यूशन के पहले बाद में जहां पे भी जगह है वहां पर ये क्वेश्चन लिख लो. नोट्स टू अकाउंट्स. नहीं, ये अब आपको अब जो स्क्रीन पे है ये दिखाई दे रहा है. अब कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट प्राइस ऑफ ₹12. यस सर. ये वाला क्वेश्चन लिख लो. इसका एग्जांपल लेते हुए हम एंट्रीज समझेंगे. व्हेन शेयर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट्स, तो तब अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या कैसे कैसे होती हैं इसके थ्रू समझेंगे. तो ये एग्जांपल का क्वेश्चन लिख लो आप. A company issued 10,000 shares at a price of ₹12. 10 is face value and ₹2 is premium. Payable as ₹1 on application, 6 on allotment. अगर ये मेंशन नहीं भी होता 4+2, तो हमें पता है कि अगर हमें सपोज सिर्फ दे रखा हो 1 on application, 6 on allotment, 3 on first call, 2 on second call, तो बाय डिफॉल्ट अभी हमने डिस्कस किया कि हमने प्रीमियम को एज्यूम करना है किस में आया, अलॉटमेंट में. इसका मतलब ₹6 में से ₹2 प्रीमियम है, ₹4 फेस वैल्यू है अलॉटमेंट पे. ठीक है? 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल. देखो 10 + 2 पूरे हो गए. 1 + 4 5 + 3 7 8 + 2 10 फेस वैल्यू और +2 प्रीमियम, ₹12 पूरे हो गए. Applications were received for 25,000 shares. Issue 10,000 किए थे, एप्लीकेशन आ गई 25,000 shares की. Applications for 5,000 shares were rejected and their amount for refunded. ठीक है? Remaining applicants were allotted 50% of shares. 20,000 रह गए. 20,000 को आधे शेयर अलॉट कर दिए जितने उन्होंने अप्लाई किए थे. उसके बाद दिया हुआ है X did not pay allotment and calls money on 500 shares. Y paid calls amount along with allotment on his 400 shares. तो X का क्या है? एरियर्स है, एडवांस है? एरियर्स. और Y के केस में क्या है? एडवांस. उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों के पैसे अलॉटमेंट के टाइम ही भेज दिए. Z पेड सेकंड कॉल मनी विद फर्स्ट कॉल मनी. ये क्या है? एडवांस या एरियर्स? ये भी एडवांस है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल के पैसे भेज दिए.
ठीक है, 100 शेयर्स पे। ये पूरा क्वेश्चन लिख लो और लिख के बताओ। Written? Yes, sir. Okay. Now we will discuss these entries taking help of this example in the next class. ठीक है, अभी थोड़ा टाइम कम है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये स्टार्ट करेंगे तो इस क्लास में, आप फिर नेक्स्ट स्लॉट में आप कह रहे हो आपकी दूसरी क्लास मैथ की क्लास भी है, तो इसे अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एंट्रीज समझेंगे। ठीक है, यहां तक एनी डाउट एनीवन? No, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.